Good evening, everyone. I am Dr. Nupur Gupta, gynecologist practicing at Well Woman Clinic, as well as I work as director in the Department of Obstetrics and Gynecology at Fortis Memorial Research Institute, Gurugram. Today, we will be discussing a very important topic and which is one of the biggest concerns for a to-be mom, that is her mode of delivery. And most of them prefer to have a natural childbirth. Though there are instances of planned cesarean, planned induction when indicated at that time of delivery. In this live session, we have with us Dr. Manjari Deshpande, who is a childbirth educator, who will be sharing with us expert tips to prepare your body for normal delivery. So welcome, Manjari. Hello everyone. Thank you Dupur ma'am for calling me on this session. So let me introduce you all to Dr. Manjari. Dr. Manjari Deshpande is a certified childbirth educator and a breastfeeding or lactation consultant. Since last 5 to 6 years, she has been working with parents to guide them about pregnancy care, birth preparation, exercise, post-delivery care, and breastfeeding. More than 200 mothers have benefited from her till date. She's best on educating moms and fathers about labor and delivery and how you should conduct yourself at that time. Currently, she is continuing to pursue her passion to bring the joy of motherhood to numerous families through her childbirth education classes. So let us start today's session, Dr. Manjari. So, Dr. Manjari, we all know that diet plays a very important role during pregnancy in a woman's life. And Yes. diet is important not only for mother herself to fulfill her need, but also that of the baby. Although we give so many supplements during pregnancy other than what they eat, which is in the form of folic acid, calcium, iron, and so many other nutrients in the form of vitamin D or B12, sometimes zinc and other micronutrients. But diet plays very important role otherwise also. So Dr. Manjri, can you explain us that how does a healthy, well-balanced diet help in preparing mother for a normal childbirth? अगर हम देखें कि एक हेल्दी वेल बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए, सो एक हेल्दी वेल बैलेंस डाइट हम उस डाइट को कहते हैं कि जो एक मदर की जो रिक्वायरमेंट है वो उस क्वांटिटी और उस प्रोपोर्शन में फुलफिल करे। सो उसको हम एक वेल बैलेंस डाइट कह सकते हैं। तो उसमें सारा आपका आ जाता है, जैसे आपका कैल्शियम अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो एनर्जी डेंस फूड हम बोलते हैं जिसको, प्रोटीन्स है, तो वो जो सारी एक रिक्वायरमेंट होती है मदर की, वो उस रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में जब हम अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तब हम उसको वेल बैलेंस डाइट कहते हैं। तो डॉक्टर मंत्री, वेल बैलेंस डाइट में बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो बेसिक नीड जो प्रेग्नेंट वुमेन की है वो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो भी इनन्यूमरेबल है। तो क्या आप शॉर्ट में ऐसा बता सकते हैं कि कौन से ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं या कैल्शियम वाली डाइट है, कौन सा फैट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि हेल्दी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? और अब तो मौसम बदल रहा है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जबकि ठंड पड़ रही है, तो ड्राई फ्रूट्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो क्या आप शॉर्ट में डाइटरी टिप्स दे सकते हैं, स्पेशली ठीक फॉर है। इंडियन प्रेग्नेंट मदर्स के लिए? यस। रिसेंटली जब मैं इस पे ज़्यादा रीड आउट कर रही थी तो मुझे जो मैंने बुक पढ़ी, द नेम ऑफ द बुक इज़ द न्यूट्रिशन फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी, रिटन बाय एलिजाबेथ सोमर। सो जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने उस 6 ग्रुप्स उसने जो एक्सप्लेन किए हैं वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगे। सो 6 ग्रुप्स में उसने ये मेंशन किया है कि कैल्शियम रिच फूड तो वो कितना होना चाहिए डेली, तो इस अप्रोक्सीमेटली आपका 2 to 3 सर्विंग्स होनी चाहिए। कैल्शियम रिच फूड जो आपको विटामिन डी भी सप्लाई करते हैं और कैल्शियम भी आपका हो जाता है, और कुछ हद तक आपका विटामिन B12 भी आप उसमें कवर कर सकते हैं। सो कैल्शियम रिच फूड जो है वो सबसे मेन सोर्स आपका मिल्क आ जाता है। बट अगर सपोज मदर को मिल्क पसंद नहीं तो वो किसी और फॉर्म में भी उसको ले सकती है, जैसे हम कहें कि लस्सी ले सकती है या छाछ ले सकती है,
या पनीर के फॉर्म में ले सकती हैं, जो उसको पसंद है, या योगर्ट, कर्ड, किसी भी फॉर्म में वो उसको अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए ले सकती हैं। सो कितना अप्रोक्सीमेटली वो ले सकती हैं? सो वो 2 to 3 सर्विंग्स उसकी डेली रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम 1 सर्विंग्स मान के चलें, तो 1 ग्लास ऑफ मिल्क आपका अप्रोक्सीमेटली 1 सर्विंग्स हो जाता है, या एक मीडियम साइज़ का आपका जो योगर्ट है वो आपका 1 सर्विंग्स में आ जाता है। सो दूसरा आता है आपका वेजिटेबल्स, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वेजिटेबल्स की, वो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 सर्विंग्स है। उसमें आपकी सारी वेजिटेबल्स आ जाती हैं। तो स्पेसिफिकली अभी जब ठंड का मौसम है, तो वैराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स अभी अवेलेबल हैं, तो आप उसको अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जितनी वैरायटी आप इंक्लूड करेंगे, वो आपका माइक्रो और माइक्रो दोनों को भी कंप्लीट करने में हेल्पफुल रहेगा। स्पेसिफिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब फॉलिक एसिड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उसको, जो अभी वेजिटेबल्स आ रही है, उसको अपने डाइट में इंक्लूड करके उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तीसरा आता है फ्रूट्स। सो फ्रूट्स में आपकी डेली की रिक्वायरमेंट जो है वो 3 to 4 सर्विंग्स है। तो 3 to 4 सर्विंग्स अगर हम उसको कैसे मान के चले कि कितना होना चाहिए, तो अगर आपका एक मीडियम साइज का फ्रूट है, तो आपका 1 सर्विंग में आ जाता है। सपोज अगर आप कट फ्रूट्स ले रहे हैं, तो हाफ कप जो है वो आपका 1 सर्विंग में आ जाता है। तो उसका अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स ले सकते हैं। स्पेसिफिकली एटलीस्ट आपका 1 to 2 सर्विंग्स विटामिन सी को, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट 2 सर्विंग्स तो आप विटामिन सी वाली फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, या आप उसमें लेमन वाटर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपका क्वेंचर्स भी आएगा और आपका विटामिन सी का जो है वो भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। सो दूसरा आता है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो एक्स्ट्रा लीन एंड मीट आपकी जो है, या लेग्यूम्स अगर वेजिटेरियन मदर्स है, तो उसमें आपकी अप्रोक्सीमेटली सर्विंग्स डेली की 2 to 3 सर्विंग्स है। अगेन एक मीडियम साइज आपका बाउल उसमें आ जाता है। सो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 2 to 3 सर्विंग्स की है। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं अपने मील को, एक कंप्लीट मील बनाने के लिए। सो बट ये सजेस्ट करूंगी मैं कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन, तो लीन मीट ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। प्लस आपका सोर्स जो है वो आप चेक कर लीजिए कि कहाँ से आप खरीद रहे हैं, उसकी पैकेजिंग क्या है, उसका कैसे वो पैक होके आया है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो कितना क्लीन और हाइजीनिक है, सो दैट आपका बाकी जो उससे बॉर्न जो डिसीजेस है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। सो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, तो इन सोर्स के ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। दूसरा आपका ग्रेन्स, जो आपका बहुत ही बड़ा सोर्स होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम बोलते हैं, या एनर्जी डेंस फूड बोलते हैं, तो उनकी जो सर्विंग्स या उनकी रिक्वायरमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 सर्विंग्स है। तो उसमें आपका सारा आ जाता है, जो भी आप रोटी लेते हैं, जैसे गेहूं हो गया, आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो अब अभी जो मौसम है उसके हिसाब से फिर आप उस डाइट को अपने में इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपको फिर एनर्जी भी दे देगा और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करेगा। प्लस आप वैरायटीज इंक्लूड कर सकते हैं मौसम के हिसाब से। सबसे लास्ट में आता है आपका क्वेंचर्स, जो आप थर्स्ट को है उसको फुलफिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप वाटर इज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए, प्लस आपकी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। दूसरा जो टिप्स अगर हम कहें, तो फ्रिक्वेंटली आपको मिल्क की ज़रूरत है, बिकॉज बेबी हाईली ग्रोइंग फेज में होता है और उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप फ्रिक्वेंटली लेते हैं, तो बेबी के अपनी एनर्जी सोर्स मेंटेन करते हैं। दूसरा आता है फैट कितना लेना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली स्मॉल, या हम कह सकते हैं कि 5 to 6 टीस्पून जो है वो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है। तो आप उसको अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। उसमें आपका सब कुछ आ जाता है, चाहे घी हो, तेल हो, या आप छौंक में लगा रहे हैं या ऊपर से ले रहे हैं, तो इतनी कम रिक्वायरमेंट आपकी ऑयल या घी की होती है। तो फ्राइड फूड्स का तो कोई सोर्स नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। सपोज आपको कुछ क्रेविंग्स है, तो फिर आप उसको मिनिमम फॉर्म में लेके अपनी क्रेविंग्स को कंप्लीट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली स्वीट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो एक स्मॉल चॉकलेट पीस, या ट्रेडिशनली अगर कोई अभी मौसम के हिसाब से बना हुआ है, या सपोज छोटा सा एक लड्डू जो ट्रेडिशनली गुड या किसी अच्छे न्यूट्रिशनल डेंस पैक में बना हुआ है, तो फिर आप उसको ले सकते हैं। तो डॉक्टर मंजरी, बहुत बार प्रेगनेंसी में लोग सोचते हैं कि अब हम कुछ भी खा सकते हैं, बिकॉज नाउ वी आर ईटिंग फॉर 2, लेकिन रिक्वायरमेंट जो है वो 300 to 500 किलो कैलोरी से ज्यादा नहीं होती। नहीं, यस, तो ये मिथ है कि 300, हाँ हाँ हाँ,
कि अगर एक मदर प्रेग्नेंट है तो उसको डबल खाना खाना चाहिए, एक मदर के लिए और बेबी के लिए। सो इट्स टोटली मिथ। अप्रोक्सीमेटली जैसा आपने बोला कि 300 टू 500 कैलोरीज की जरूरत है, और वो एग्जैक्टली आपका एक ग्लास ऑफ मिल्क और एक सिंपल वेजिटेबल सैंडविच जो है वो आपकी 300 टू 500 कैलोरीज को कवर कर लेता है। सो इतनी ही आपकी रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा नहीं है। तो प्रेगनेंसी में जो डाइट चेंज होती है बेसिकली कोई बहुत बदलाव नहीं है। अगर आप हेल्दी ईटर हैं इवन प्रायर टू प्रेगनेंसी, तो मोस्टली आपकी डाइट विल बी ऑलमोस्ट द सेम, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। ओनली थिंग इज यू बिकम मोर अवेयर, यू वांट टू बी मोर केयरफुल कि आप क्या खा रहे हैं। तो हम यस। नेक्स्ट चीज पे आते हैं डॉक्टर मंजरी। कभी कभी इंटेक ज्यादा है, कभी कम है, और उसी की वजह से बेबी का वेट जो है बहुत उन चीजों पर भी डिपेंड करता है। मतलब डाइट वी ऑल नो कि प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिजिकल हेल्थ ऑफ मदर। और यस। फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज आप एडवाइस करते हैं, और उससे और भी क्या फायदे हैं टू मदर एज वेल एज टू बेबी? एक्सरसाइज के तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं बोथ मदर एंड बेबी के लिए। अगर प्रेगनेंसी को हम देखते हैं तो बिकॉज ऑफ हार्मोन्स कई बार क्या होता है कि आपकी मसल की जो टोन है वो कम हो जाती है। बट अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आप मसल की स्ट्रेंथ को बना पाते हैं। सो अगर आपकी मसल स्ट्रेंथ बन जाती है तो आप एक्टिव महसूस कर सकते हैं। प्लस आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रेगनेंसी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है तो आप अगर डिफरेंट एक्सरसाइज फॉर्म वॉक या जैसे आउटडोर कोई एक्टिविटी करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। अभी कोविड की वजह से तो आपकी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, बट अगर आप घर में अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उस पोजेस या योगा या एक्सरसाइज को अपनाते हैं तो वो ज़रूर आपके लिए फायदेमंद होगी, आपकी मसल स्ट्रेंथ को बनाने के लिए प्लस आपको एक्टिव रखने के लिए। हाँ, तो डॉक्टर मंजरी आपने बहुत सही कहा। और एक्सरसाइज से एक पॉजिटिव हार्मोन भी रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एंडोर्फिन। और यस। यही फिर इसी से ही आपको स्ट्रेंथ भी मिलती है, और इसी से मोटिवेशन भी मिलता है, और इसी से पॉजिटिविटी आती है, ताकि आप पॉजिटिव एफर्मेशन कर सकें और पॉजिटिवली विजुअलाइज कर सकें दैट माय प्रेगनेंसी विल बी वेरी हेल्थी। और आपके मन में डाउट ना आए कि आगे जाकर मदर को मुझे क्या होगा, या बेबी कैसे होगा, बेबी का वेट कितना होगा, डिलीवरी कैसे होगी। और जो कि बहुत से फायदे डॉक्टर मंजरी ने बताए कि आपका बैक एक, आपके लेग क्रैम्प्स, जो आपकी थकान है। और बहुत सी मदर्स आजकल वर्किंग भी हैं, तो वर्किंग मदर्स के लिए भी टू बी फिजिकली एक्टिव एंड कीप मूविंग विल हेल्प यू कोप अप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड आप लास्ट तक अपना दोनों कार्य कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे वो घर पे हो चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड भी हो। तो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी फिजिकल एक्टिविटी की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो डॉक्टर मंजरी स्पेसिफिकली हाँ। अगर आप ज्यादा काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ज्यादा काम कर रहे हैं तो वार्म अप और बीच बीच में आपको उठ के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है डॉक्टरों पर। बिकॉज अगर मदर काफी देर तक बैठी हुई है तो ऑब्वियसली मसल जो है आपका वो स्ट्रेस में आ जाएगा, और दूसरा सर्कुलेशन भी हैम्पर हो जाएगी। तो अगर आप बीच बीच में उठ के थोड़ा सा वॉक करते हैं या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं या थोड़ा सा वार्म अप भी करते हैं तो इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू टू इम्प्रूव योर सर्कुलेशन, एंड यू विल डेफिनेटली फील एक्टिव टू होल ऑफ द डे। और अगर आप हम कह सकते हैं कि इसका जो बेनिफिट अगर हम देखें तो तो डॉक्टर मंत्री, हमने डाइट की बात की, एक्सरसाइज की बात की, पर उतना ही इम्पोर्टेंट टू बी रिलैक्स्ड भी है। मतलब हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ शुड ऑल्सो बी अप्रोप्रिएट टू गो थ्रू 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। क्योंकि यस। एंजाइटी इश्यूज भी आ जाते हैं, कभी कभी नींद की प्रॉब्लम होती है, थकान रहती है, बहुत सारे दूसरे स्ट्रेस पॉइंट्स भी आ जाते हैं, जो कि ना ही प्रेगनेंसी को अफेक्ट करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ लेबर ऑल्सो दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक यूज करें, क्या मेडिटेशन करें टू कीप देमसेल्व्स रिलैक्स्ड? आप रिलैक्सेशन और मेडिटेशन के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है।
आप दिन का कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, जो आपको कंफर्टेबल हो, जहाँ आप खुद को अपनी सारी कामों से या अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा खुद को फ्री महसूस करके आप उस चीज़ को अपना सकते हैं। आप एक घर का कोई अच्छा सा कॉर्नर चूज़ कर लीजिए, जहाँ आपको लगेगा कि ये कॉर्नर मुझे बहुत ही प्यारा लगता है या मुझे अच्छा लगता है इस कॉर्नर में, तो वो ले सकते हैं। जिसमें हल्की सी हवा आती हो या व्यू आपका अच्छा हो घर से, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आईज़ क्लोज़ कर लीजिए, सिंपल एक हैंड जो है आपका राइट हैंड एब्डोमेन पे रखिए, लेफ्ट हैंड आप अपने लेफ्ट साइड में रख सकते हैं चेस्ट पे, और आईज़ क्लोज़ करके आप बेबी की मूवमेंट ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो कोई भी प्रीनेटल म्यूज़िक आप साथ में लगा सकते हैं। अब तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा प्रीनेटल म्यूज़िक्स अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर वो पसंद नहीं तो सिंपल वाटरफॉल की साउंड भी बहुत सूदिंग एंड कंफर्टेबल बनाती है, आपको रिलैक्स कर देती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्रीदिंग अगर हम कहें तो सिंपल, अगर आपको ज़्यादा कुछ अपने क्लासेस नहीं जॉइन किए, आपको कुछ पता नहीं, तो सिंपल इन एंड आउट भी आप कर सकती है ब्रीदिंग। बस अपनी ब्रीदिंग पे कई बार बीच-बीच में ऑब्ज़र्व कर लीजिए, बीच-बीच में आप अपनी बेबी को मूवमेंट ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सो आपकी तीनों जो है बेनिफिट्स वो एक ही सेशन में आपके कंप्लीट हो जाएँगे। आपका म्यूज़िक भी हो गया, आपका मेडिटेशन और रिलैक्सेशन भी हो गया और आपकी ब्रीदिंग भी हो गई। ब्रीदिंग बहुत स्पेशली बेनिफिशियल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लेबर ऑल्सो। अगर आप प्रेगनेंसी में उसके बेनिफिट्स देखें तो कई बार क्या हो जाता है, जैसे हम एडवांस प्रेगनेंसी में आते चले जाते हैं, तो हमारा जो डायफ्राम है, जो हमारी चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में बड़ा सा मसल का बैंड है, वो थोड़ा पुश अप हो जाता है बिकॉज ऑफ ग्रोइंग यूट्रस, और आपकी जो लंग्स है वो थोड़ी सी उनकी एक्सपांशन कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से कई बार हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ जाता है, जैसे खींच के सांस लेनी पड़ सकती इस तरह से। बट अगर आप रेगुलर ब्रीदिंग करते हैं तो आप इस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस आपका जो ब्रीदिंग है वो आपको रिलैक्सेशन भी देगा। और अगर हम लेबर में इसके अगर बेनिफिट्स देखें तो कई बार क्या होता है कि जैसे लेबर पेन आती है तो हम पेन की वजह से हमें फियर आ जाता है, और फियर की वजह से मसल में टेंशन क्रिएट हो जाती है, और आपका जो लेबर पेन है बहुत ज्यादा आपको पेनफुल महसूस होने लगता है, और उसकी वजह से स्ट्रेस फिर से बढ़ने लगता है, और कई बार आपकी लेबर प्रोग्रेस नहीं हो पाती या हॉल्ट हो जाती है, या उनका सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न नहीं रहता। बट अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेगुलरली उस टाइम पे भी करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको डीप रिलैक्सेशन कर देगी, और उसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इफेक्टिव हो जाएगा, बिकॉज आपका मसल जो है उसका ऑक्सीजन सप्लाई रिस्टोर हो जाता है, और फिर आपका रिलैक्सेशन हो जाता है, और आपकी कॉन्ट्रैक्शन जो है आपको मैनेजेबल लगेंगे। सो ये बहुत ही बेनिफिशियल है अगर हम ब्रीदिंग, डीप रिलैक्सेशन और मेडिटेशन हम देखें तो। बट अगर आप रेगुलरली इसको वर्कआउट करते हैं या रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको वो लेबर में ज़्यादा उसको यूज़ करने में बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली हम उसको ड्यूरिंग लेबर यूज कर सकते हैं। हाँ, तो आपने बहुत ही अच्छे बेनिफिट बताए। और अगर डीप ब्रीदिंग हम रूटीन में भी करेंगे तो ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होता है हमारे सेल्स का, बॉडी का, थ्रू द लंग्स, और हार्ट का, ब्रेन का भी, तो आप ज्यादा एक्टिव फील करते हैं। और लेबर में तो बहुत बेनिफिट है ही, और बेबी को भी ऑक्सीजन पूरा जाता है एट द टाइम ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और बेबी को डिस्ट्रेस होने के चांस भी कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं। अ, तो डॉक्टर मंजरी, आजकल बहुत सी एंटीनेटल क्लासेस भी होने लगी हैं, जिनको हम चाइल्ड बर्थ प्रिपरेशन क्लास या चाइल्ड बर्थ एजुकेशन क्लास भी कहते हैं। और इसमें दोनों ही पेरेंट्स को, हस्बैंड वाइफ को टीच किया जाता है अबाउट स्टेजेस ऑफ लेबर, या हाउ टू मैनेज मॉर्निंग सिकनेस, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या मेडिकल इंटरवेंशंस हो सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर लेबर, हाउ टू कोप अप विद लेबर पेन्स, और बहुत सी ऐसी बातें, हाउ टू ब्रेस्ट फीड बेबी, तो ये क्लास भी ली जाती है प्रायर टू डिलीवरी, एंड हाउ टू लुक आफ्टर योर न्यू बॉर्न। तो यस। स्पेशली मेट्रो सिटीज में या बिग सिटीज एंड टाउन्स में जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हाउ मच डू यू थिंक आर दिस क्लासेस बेनिफिशियल? डेफिनेटली ये क्लासेस बहुत बेनिफिशियल हो जाती हैं अगर हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें, तो अगर हम जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं तो बहुत बार हमें वो सलाह या जो हमारी ग्रैंड मदर से या मदर से जो मिलती है वो कई बार वो हमें उतनी इफेक्टिव या बेनिफिशियल नहीं लगती, या हम कंफ्यूज हो जाते कि सच में क्या इन्फॉर्मेशन हमें बेनिफिशियल रहेगी या मेरी जो फियर है वो कैसे कम होगी, तो बहुत सारी हमें उस टाइम पे डाउट्स आ जाते हैं।
बट अगर आप चाइल्ड बर्थ एजुकेशन क्लासेस करते हैं तो आपको एक राइट फ्रेमवर्क में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो उससे जैसे लेबर आपका कैसे प्रोग्रेस होगा, कितनी आवर्स का लेबर होगा, या कैसे पता चलेगा फर्स्ट टाइम मदर को कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई है, या वार्निंग साइंस क्या है कि जब वो इमिडिएटली हॉस्पिटल में जाना है। सपोज आपका नॉर्मल पाथवे पे है लेबर, तो हॉस्पिटल कब जाना है, हस्बैंड का रोल क्या रहता है, वो कैसे उसको मदर को ड्यूरिंग लेबर बेनिफिट या उसको लेबर पेन्स के साथ मैनेज करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो ये सारी डिफरेंट चीजें जो या डिफरेंट टॉपिक्स जो है या इंफॉर्मेशन है वो चाइल्ड बर्थ एजुकेशन क्लासेस में कवर हो जाती हैं। तो फादर मदर को एक राइट डायरेक्शन में गाइडेंस मिल जाता है कि लेबर के साथ कैसे मैनेज करना है। या अगर सपोज जैसे आपने एक्सपेक्ट किया है उस तरह से अगर आपकी लेबर प्रोग्रेस नहीं हो पाती, सडनली आपको कुछ इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती, तो उनको भी कैसे टैकल करना है या क्यों करना पड़ता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। सो डेफिनेटली चाइल्ड बर्थ एजुकेशन क्लासेस आपको हेल्पफुल रहेंगे, स्पेशली फर्स्ट मदर को तो ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि उनको वो एक अच्छी गाइडेंस या एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कई बार हम गूगल सर्च करते हैं या अपनी फ्रेंड्स से और बाकी लोगों से, रिलेटिव से सुनते हैं, बट फिर भी हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मेरे लिए कितनी क्या कह सकते हैं कि कितनी बेनिफिशियल रहेगी, या मेरे लिए कितनी असरदार रहेगी, या मेरे साथ क्या होगा। तो वो कई बार वो डाउट आपका क्लियर नहीं हो पाता, बट एक चाइल्ड बर्थ क्लास जो है वो डेफिनेटली आपको इसमें हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ, थैंक यू डॉक्टर मंजरी। तो चाइल्ड बर्थ एजुकेशन के साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट है कि अपना बर्थ प्लान डिसाइड करें और अपना बर्थ प्लान बनाएं अपने डॉक्टर के साथ, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ। द डे यू गिव बर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट part of your life. And if you create a birth plan prior, then your labor and delivery can be planned. And what will happen? It is basically to outline your preferences for labor and delivery. तो आपके बर्थ प्लान में आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल कब आना है, अगर लेबर पेन स्टार्ट होगा तो आप कहाँ पे आपको पहुंचना है, किससे बात करनी है, किसको इन्फॉर्म करना है, यदि मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो क्या करना है, कैसे आपको कंफर्टेबल होना है। तो कीपिंग इन माइंड कि बर्थ प्लान बनाने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ फिक्स हो गया है, क्योंकि आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते दैट व्हाट विल हैपन ऑन दैट डे, but Yes. you and your doctor may need to make the changes to the plan once your labor begins. इसीलिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत जरूरी है अपने माइंड Yes. में, अपनी बॉडी में, सब तरह से। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आपका बर्थ प्लान बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशन चलेगा। पर बर्थ प्लान में आपको अपने लेबर के प्रेफरेंसेस डिस्कस करने हैं कि आप आपके साथ आपके पार्टनर अलाउ होंगे कि नहीं, आप वॉक कर पाएंगे, आपको क्या बर्थिंग बॉल मिलेगी, आपको पेन मैनेजमेंट के लिए क्या क्या आपका डॉक्टर या आपका हॉस्पिटल आपको ऑफर कर सकता है टू टेक केयर ऑफ योर पेन। सो बहुत सी बातें आप डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग द बर्थ प्लान। तो डॉक्टर मंजरी, तो आपकी क्लास में बर्थ प्लान के बारे में भी गाइड किया जाता है, तो आपके हिसाब से इससे क्या फायदा हो सकता है? बर्थ प्लान का एक फायदा ये हो जाता है कि आप एक मदर के जो डिलीवरी से रिलेटेड जो गोल है वो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं डॉक्टर्स के साथ और हॉस्पिटल के साथ। सो उसकी जो प्रेफरेंसेस है उनको हम ज़्यादा महत्व देते हैं और उनको बोलते भी हैं कि अगर ये इस तरह से होगा तो क्या होगा, अगर इस तरह से नहीं होगा तो क्या होगा, तो आपको कैसे उसके साथ मैनेज करना है। सो ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं बर्थ प्लान में हम डेफिनेटली डिस्कस करते हैं। सपोज एक मदर को अगर इन्वायरमेंट काम एंड सूदिंग चाहिए तो वो पहले से ही बता के रख सकती है कि मुझे लाइट डीप चाहिए, या मुझे एरोमा थेरेपी चाहिए, या मैं ये वाले कोपिंग टेक्निक्स यूज करूंगी, या मुझे जैसे आपने बोला कि बर्थ बॉल की जरूरत है क्योंकि बर्थ बॉल बहुत बेनिफिशियल है ड्यूरिंग लेबर। सो वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो अगर हमने पहले से ही डिस्कस की हुई है तो वो चीजें जो है वो अरेंज करना, उनको मैनेज करना, और अगर सपोज नहीं तो उसका अल्टरनेटिव हम क्या कह सकते हैं। या सपोज अगर मदर इपिड्यूरल नहीं चाहती थी पहले, बट उसको पता है कि हाँ अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उसको उस टाइम पे देख लूंगी, तो उसका वो जो ऑप्शन है वो प्लस माइनस भी रख सकती है और एंड टाइम पे भी वो डिस्कस कर सकती है कि मैम मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं
जो अगर हमने पहले से डिस्कस की हुई हैं, तो उनको फॉलो करने में बहुत ईज़ी हो जाता है ड्यूरिंग लेबर जो है। और आपका जो प्रेफ़रेंस है, उसको अगर हम महत्व देते हैं, तो मदर को भी लगता है कि उसको सुनने के लिए कोई तैयार है। जो उसकी डिमांड्स है, उसको हम्म। वो इम्पोर्टेंस मिल जाती है। सो डेफ़िनेटली बर्थ प्लान आपको हेल्पफुल रहेगा। बट आपका जो बर्थ प्लान वो हमेशा क्रिस्प होना चाहिए, बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए, बहुत बड़ा और बहुत वेग नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको बहुत ही इम्पोर्टेंटली बोल्ड लेटर्स में या बोल्ड सेंटेंस या बोल्ड टाइप्स में लिख सकते हैं, जो भी आपकी प्रेफरेंस है अपने चाइल्ड बर्थ या अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करके, सो दैट आपको पूरी अवेयरनेस आ जाएगी कि उस टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हॉस्पिटल क्या प्रोवाइड कर सकता है, आपकी गायनी आपका ऑब्स्टेट्रिशियन आपको कैसे हेल्प कर सकता है। सो डेफिनेटली ये एक फुलफिल प्लान जो है वो आपको, या कंप्लीट प्लान जो है वो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो डॉक्टर मंजरी, आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत इम्पोर्टेंट रोल आ गया अबाउट ए ट्रेन्ड लेबर कंपेनियन, जिसको हम डूला कहते हैं। और यस। डूला की ड्यूटी होती है टू गिव कंफर्ट, टू गिव एनकरेजमेंट एंड ऑल्सो सपोर्ट वुमेन ड्यूरिंग लेबर, बोथ यस। फिजिकली एज वेल एज इमोशनली. इमोशनली। हम्म। Although doulas are people who are not doctors and they don't have medical training, but they यस। have the training to help you guide during labor, और आपको लगातार एजुकेट करेंगे, आपके साथ आपके हस्बैंड को भी हेल्प करेंगे, बट शी विल नॉट बी अ रिप्लेसमेंट टू अ डॉक्टर और टू योर हस्बैंड. यस। पर इनको ये एजुकेशन होती है, आपको ब्रीदिंग में हेल्प करेंगे, आपको पेन में करेंगे, मे बी दे कैन हेल्प यू डू द मसाज. यस। तो तो डॉक्टर मंजरी, बता दें। डुलास की पॉपुलैरिटी इंडिया में अभी नहीं है, बिकॉज इनको हायर करना पड़ता है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल सेटअप. और पैकेज। ये हाँ, और ये रूटीन में अवेलेबल नहीं होते किसी भी हॉस्पिटल में. बट अब कुछ लोग इस चीज की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं. और जो आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने चाइल्ड बर्थ एजुकेशन किया है, वो लोग भी डूला की ट्रेनिंग देते हैं. तो यस। बट दिस इज अ न्यू स्कोप इन चाइल्ड बर्थ which which should become popular in years to come. यस। डेफिनेटली डूला जो है वो आपके लिए एक वॉइस का काम करती है। वो आपको हेल्प करेगी डिफरेंट कोपिंग टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए, सो दैट आप लेबर पेन्स के साथ मैनेज कर सकते हैं। सपोज अगर आपकी लेबर हॉल्ट हो जाती है, तो दोबारा से उसमें बाउंस बैक करने के लिए अपनी लेबर जो है वो दोबारा से ऑन ट्रैक लाने के लिए कैसे करना है, वो एंड टाइम पे आपको गाइड कर सकते हैं, सो दैट आपका जो वजाइनल डिलीवरी के चांसेस है वो डेफिनेटली आपके बढ़ जाते हैं। सो डूला भी बहुत हेल्पफुल है। बट हाँ, इंडिया में तो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट आगे ज़रूर उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और उनका बेनिफिट भी फादर मदर को ज़्यादा होगा। तो अगर नहीं है तो हम फादर को, अगर डूला नहीं है तो बेसिकली हम फादर को ट्रेन कर सकते हैं या उनको भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सो दैट वो मदर को ड्यूरिंग लेबर हेल्प करे और मदर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। अगर सपोज मदर का सपोर्ट पर्सन बहुत अच्छा या कॉम्पिटेंट है, तो वो डेफिनेटली मदर की बॉडी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, वो फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग बन जाती हैं और वो वजाइनल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा देता है। तो डॉक्टर मंजरी, बहुत बार हम कहते हैं कि बेबी की मेच्योरिटी हो जाती है ऑलमोस्ट आफ्टर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, पर फिर भी हम वेट करते हैं टिल द ड्यू डेट. तो ड्यू डेट तक वेट करने का सबका एम यही है कि लेट द लेबर बिगिन ऑन इट्स ओन एंड लेट द बेबी चूज द ड्यू डेट. तो ड्यू डेट यस। की चॉइस बेबी को है कि वो कब बाहर आना चाहता कब है, बाहर आएगा। rather than the obstetrician or rather than the mother मदर या उनकी फैमिली. चूजिंग। सो सबसे अच्छी चीज है फॉर अ नेचुरल चाइल्ड बर्थ इज to let the baby choose what will be the due date and let the labor begin on its own. तो डॉक्टर मंजरी, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? डेफिनेटली अगर एक जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन से या लेबर पेन से अगर वो स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो जाती हैं, तो डेफिनेटली वो हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि बेबी ने खुद डिसाइड किया है कब उसको बाहर आना है। प्लस जो नेचुरली इनिशिएटेड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो बहुत ही मैनेजेबल हो जाती है, क्योंकि उनमें जो दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच का टाइम गैप होना, फिर आपके सर्विक्स का ओपन होना या बेबी का डिसेंट होना, ये जो है ये बहुत सिंक्रोनाइज्ड होता है। और जो बॉडी में नेचुरली ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करने के लिए,
वो आपको हर तरफ से बेनिफिशियल हो जाती हैं। अगर हम कह सकते हैं कि वो 2 कॉन्ट्रैक्शन के बीच में अच्छा टाइम गैप होता है, तो आप रेस्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्लोली आपकी जो है प्रोग्रेस में आ जाएगी, माइल्ड टू मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग, इस तरह से वो बढ़ती चली जाएँगी। तो धीरे-धीरे आप भी प्रिपेयर हो जाएँगे कि माइल्ड से मॉडरेट को कैसे कोप अप करना है, मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस के साथ कैसे कोप अप करना है, या नेचुरली आपको 2 कॉन्ट्रैक्शन के बीच में टाइम गैप मिल जाता है, जिसको आप अपनी रिलैक्सेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो डेफिनेटली स्पॉन्टेनियसली जो इनिशिएटेड कॉन्ट्रैक्शंस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इंडक्शन एज़ अ चाइल्ड बर्थ, हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि स्पॉन्टेनियस इनिशिएटेड लेबर ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट येस, कुछ रीजंस होते हैं जहाँ आप वेट नहीं कर सकते स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शंस को इनिशिएट के लिए, या नॉर्मल लेबर को स्टार्ट होने के लिए, स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट होने के लिए हम वेट नहीं कर सकते। सो आपके ऑब्स्टेट्रिशियंस है वो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लेंगे कि वेट करना या नहीं करना है। तो उसके डिफरेंट रीजंस हैं जब हम वेट नहीं कर सकते। बट अगर सब कुछ नॉर्मल है, तो डेफिनेटली लेबर को स्पॉन्टेनियसली इनिशिएट होने के लिए हम वेट कर सकते हैं। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर मंजरी। और जो हम नेचुरल चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं, नेचुरल चाइल्ड बर्थ का दूसरा मतलब ये है कि कम से कम मेडिकल इंटरवेंशन या कम से कम दवा देनी पड़े, और तभी नेचुरल चाइल्ड बर्थ में चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन या चांस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन या चांस ऑफ कन्वर्जन टू अ सिजेरियन सेक्शन विल बी लेस। तो यस, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली अगर आप नेचुरली जो स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, वो डेफिनेट मैनेजेबल है। प्लस आप और बेबी दोनों के लिए वो इजी हो जाता है जो होल प्रोसेस है डिलीवरी की। बट अगर मेडिकेशंस आप लेते हैं, तो उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज साथ में आ जाते हैं। अगर आपको वो पता नहीं, तो कई बार आपको वो डिफिकल्ट हो जाता है उनको ये सहन करना कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, या अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं लेती, या पता नहीं होता तो मैं सोचती भी नहीं उसके बारे में। अगर या कई बार वो बेनिफिशियल भी होते हैं और सोचती कि अगर मुझे पता होता तो मैं ले लेती वगैरह। तो इस तरह से वो कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं। तो अगर आपको मेडिकेशंस चाहिए, तो डेफिनेटली आप पहले उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में समझ लीजिएगा, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, क्योंकि आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों पता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बट अगर आप नेचुरली चाहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप सारी जो नेचुरल कोपिंग टेक्निक्स हैं लेबर पेन्स के साथ, तो अगर उनको आप यूज करते हैं, तो वो जितना लेस मेडिकेटेड होगा, तो उसके जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज है वो उतने ही कम होते चले जाएंगे। और फिर आपका जो बर्थ है वो एक हम कह सकते हैं कि प्लेजरेबल हो जाएगा, कि विदाउट मेडिकेशन आपने नॉर्मल जो कोपिंग टेक्निक्स, या विदाउट मेडिकेशन, या जो नेचुरल कोपिंग टेक्निक्स है उनको आपने यूज किया है, तो आप बर्थ को वो एंजॉय कर सकते हैं, या उस बर्थ को आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अपनी बॉडी पे ट्रस्ट करके उस प्रोसेस को, या मेरी जो गोल है उसको अचीव करने में अपने आप को मैंने उस प्रोसेस में पूरी तरह से मैनेज कर लिया है। बट अगर मेडिकेशंस हैं, तो जैसे हमने बोला कि उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स आते हैं, तो डेफिनेटली वो कई बार हमें फायदेकारक भी होते हैं, अगर कई बार नुकसानकारक भी होते हैं। हाँ, तो सो डॉक्टर अगर आप मंजरी जितना हाँ, हाँ, मिनिमम मेडिकेशंस आपकी जितनी होगी, उतना ही बोथ मदर और बेबी के लिए फायदेकारक होगा। तो हाँ डॉक्टर मंजरी, आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दी सब चीजें कि हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइज, कितने सारे फैक्टर्स, हमारी मेंटल हेल्थ या जिसको हम इमोशनल हेल्थ कहते हैं, और childbirth education means to be educated right and to not look at Google for your solutions. And साथ ही साथ अपना बर्थ प्लान बनाना, नेचुरल लेबर का वेट करना, तो ये सब बातें बहुत ही जरूरी है, और कम से कम मिनिमम इतनी नॉलेज होना से अच्छा रहता है, एंड इफ यू आर मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट एट द सेम टाइम ऑब्स्टेट्रिक्स जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, तो यू यस, नीड टू ट्रस्ट योर डॉक्टर की लास्ट मोमेंट पे आपके लिए क्या सबसे अच्छा रहेगा, आप वो ही फॉलो करें, सो दैट बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड। क्योंकि इसमें अ न्यू बॉन्ड इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड या अनप्लैन्ड मोड ऑफ डिलीवरी आपकी चेंज हो सकती है,
कभी कभी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी भी हो सकती है, या फिर नॉर्मल डिलीवरी होते होते अगर बेबी को डिस्ट्रेस है, अगर प्रोग्रेस ऑफ लेबर नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मोड ऑफ डिलीवरी चेंज करनी पड़े, पर उससे हमें हताश नहीं होना है, और आपके लिए ये डिसीजन लिया जा रहा है ओनली फॉर योर बेनिफिट। कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं जबकि पहले से डिलीवरी का मोड जो है प्लान हो जाता है। सपोज आपके लिए पहले से डिसाइडेड है कि इलेक्टिव सिजेरियन ही होना है, तो भी ये सब चीजें आपके लिए यूजफुल हैं। तब भी आपको Yes. फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान देना है, अपनी डाइट का ध्यान देना है, क्योंकि पोस्ट डिलीवरी रिकवरी ऑल्सो डिपेंड्स कि आपने ये 9 मंथ्स में अपनी कितनी केयर करी। तो डॉक्टर मंजरी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टुडे। तो लास्ट में आप एक टिप क्या देना चाहेंगे टू ऑल मदर्स हु आर लिसनिंग टुडे? मैं इनको यही टिप देना चाहूँगी कि जितना आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जैसे हमें अगर एक मैराथन में रन करना है, सो वी हैव टू प्रिपेयर इन एडवांस। हमें उसके साथ रन करने के लिए अपनी ब्रीदिंग, अपना स्टैमिना सब कुछ देखना पड़ता है। तो अगर एक लेबर को अगर हम या प्रेगनेंसी और लेबर को दोनों को ही हम एक मैराथन की तरफ देखें, तो हमें प्रिपेयर करने की बहुत ज़रूरत है। और डेफिनेटली ये प्रिपरेशन जो है वो आपको बेनिफिशियल रहेगी। जो आपका गोल है नॉर्मल डिलीवरी, या कई बार जैसे हमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती और हमें इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, फिर भी पोस्ट डिलीवरी रिकवरी, चाहे वो सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों के लिए जरूर बेनिफिशियल रहेगा। सो प्रिपरेशन इज वेरी इसेंशियल, आई कैन से दैट। सो अगर आप पहले से प्रिपेयर हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपने ली है और आप उसके हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं, या उसके हिसाब से अपनी जो लाइफस्टाइल है आप उसको मैनेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी बेबी और आप दोनों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। सो आप अगर प्रिपेयर करते हैं तो वेल एंड गुड। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है एक राइट ट्रैक पे होनी चाहिए। तो डॉक्टर मंजरी यही कहना चाहती हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन के लिए अपने डॉक्टर पर ही डिपेंड करिए, और गूगल से अपनी इंफॉर्मेशन का सोर्स ना बनाए, और राइट अपनी फ्रेमवर्क में होनी सारी चाहिए। आप अपनी इंफॉर्मेशन बॉडी को, पे हाँ, को फिल्टर करें। थैंक यू डॉक्टर मंजरी। Thank you so much, Dr. Nupur, for calling me on this session. Thank you, everyone, for listening us patiently. Thank you so much.